الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا امام المتقین۔ ارشاد خداوندی ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور اے نبی آپ یہ فرما دیجئے کہ لوگوں میں تم سے کسی طرح کا کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت، اور جو شخص جیسے عمل کرے گا اللہ اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 23 پارہ نمبر 25 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری اس گفتگو کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ محرم الحرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 9 محرم الحرام ہے۔ آج 9 محرم الحرام کو یہ جو ہے گفتگو ہم آپ سے کر رہے ہیں، یہ تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس کا جو موضوع ہے محرم الحرام ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس کا ایک مختصر سا حصہ اس پہ بات کریں گے، اور اس ضمن میں چند احادیث اور کچھ اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کی روشنی میں ہم جو ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں جس طرف ہم آپ آنا چاہ رہے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اب یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم میں ہر مقام پہ ایسا نہیں ہوتا، ہر مقام پہ نہیں ایسا ہوتا، بلکہ بعض مقامات پر جب کہیں کسی مقام پہ بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، بات میں زور ڈالنا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، یعنی بالخصوص اللہ کا حکم ہو رہا ہوتا ہے اپنے محبوب کو کہ آپ فرما دیجئے۔ اس کی چند مثالیں ہم پیش کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اس طرح کے بے شمار مقامات ہیں، لیکن یہ سب مقامات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے، بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، بات سمجھانی ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ مزید مبذول کرانی ہوتی ہے، اور بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں ارشاد ہوتا ہے قل لا اسألکم، قل لا اسألکم، اے نبی آپ فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا، علیہ اجرا، کس چیز کا؟ کسی معاوضے کا، کسی صلے کا، یعنی
अच्छा, फिर एक बात यहां और भी समझ लीजिए कि ये जो इरशाद है ये आम लोगों से नहीं है। आयत मैंने इसलिए शुरू से पढ़ी थी, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। ये भी याद रखिए कि ये खिताब आम लोगों से नहीं है, बिलखुसूस अहले ईमान से है, बिलखुसूस मुसलमानों से है, बिलखुसूस मोमिनीन से खिताब है कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। खाली ईमान लाने वाले भी नहीं, बाज़ मकामात पे ऐसा भी होता है कि आम मुसलमानों से खिताब होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। खास मुसलमान जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनसे खिताब हो रहा है। यानी ये कुफार से खिताब नहीं हो रहा, कुफार से बात नहीं हो रही। कुफार से तो कहा ही जाता है, हर नबी अपनी उम्मत से, यानी जिनकी तरफ वो तबलीग करने के लिए आते हैं उन सबको, सब नबी कहते हैं कि हम आपसे कोई अजर नहीं मांगते। लेकिन यहां ये खिताब आम लोगों से नहीं है, ये खिताब बिलखुसूस अहले ईमान से है, ये खिताब ईमान वालों से है, मोमिनीन से है, उनसे खिताब है। और उनसे फरमाया जा रहा है, कुल ला अस्अलुकुम, कि ए नबी आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कोई मुतालबा नहीं करता, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, किसी सिले का, किसी अजर का, किसी बात का कोई मुतालबा नहीं करता। हालांकि उनसे अगर आप सवाल करें, अल्लाह सवाल करे जो ईमान ला चुके, जो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुके, जो मोमिनीन बन चुके, अब उनसे अगर सवाल कर भी लिया जाए तो क्या मजायका है। लेकिन क्या फरमाया, मैं कोई सवाल नहीं करता, लेकिन इल्ला, मगर। आप देखिए हमेशा जब आगे बात इल्ला आ जाए तो बात क्या होती है, मगर। कोई सवाल नहीं करता, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने कराबतदारों की मोहब्बत का। यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सिला नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए, लेकिन ये जो मेरे अहले बैत हैं, ये जो मेरे घर वाले हैं, ये जो मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे नवासे हैं, मेरी बीवियां हैं, इनसे मुताल्लिक सवाल करता हूं। क्या सवाल है कि इनसे मोहब्बत करना, इनसे मोहब्बत। मवद्दत का लफ्ज है यहां पे, मवद्दत उर्दू में भी हम बोलते हैं, और मवद्दत से मुराद मोहब्बत और मवद्दत होती है। और मेरे कराबतदार, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने कराबतदारों से, अपने अहले बैत से मोहब्बत का मुतालबा करता हूं। आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी 23 साल जिंदगी में अपनी उम्मत से कोई मुतालबा नहीं किया, अपनी उम्मत से कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं मांगा। और यहां भी खुद नहीं मांग रहे, जो असल बात समझाने वाली है, यहां भी खुद नहीं मांग रहे, बल्कि क्या फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम। ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है कि नबी आप इनसे कहिए कि मैं तुमसे अपनी इस तबलीग का, अपने इस दीन को फैलाने का, तुम लोगों को राह रास्त पे लाने का, तुम लोगों को दायरा ईमान में दाखिल करने का, तुम लोगों से कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, कोई मुतालबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या मांग रहा हूं, अपने अहले बैत की मोहब्बत, अपने घर वालों की मोहब्बत। अब सवाल ये है, अल्लाह ने ये क्यों अपने नबी से कहलवाया? चलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर तो बात हो सकती है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। अल्लाह के इल्म गैब पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। अल्लाह का इल्म गैब तो हम सब मानते हैं ना, खा कोई देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई हो, अल्लाह का इल्म गैब तो सब मानते हैं ना। अब ये अल्लाह के नबी ने नहीं कहा, अल्लाह का नबी नहीं कह रहा, ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ए नबी आप अपनी इस तबलीग का इनसे कोई मुतालबा मत कीजिए, कोई सवाल मत कीजिए, उसका अजर आपका अल्लाह के पास है, वो अल्लाह ही देगा। अल्लाह आपके मकाम को जानता है, अल्लाह आपकी मेहनत को जानता है, अल्लाह ही देगा। लेकिन क्या मांगा अल्लाह ने? अपने हबीब से क्या कहलवाया, क्या मंगवाया? क्या कहा? अपने अहले बैत की मोहब्बत का सवाल करता हूं। अब ये क्यों कहलवाया? आज बिला
शक्को शुबा, बिला मुबालगा, बगैर किसी शक के हकीकत है, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलखुसूस आपके अहले बैत के लिए दिलों में बुग़्ज़ है, दिलों में कीना है, दिलों में, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, नफरत है। वो लोग, मैं जानता हूं और हकीकत बता रहा हूं आपको, इस वक्त भी वुजू से हूं, हकीकत बता रहा हूं, अपने इन गुनाहगार कानों से खुद सुना है जो यजीद के जन्नती होने पे दलाइल देते हैं, जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने पर इसरार करते हैं। क्या ऐसे लोगों के बारे में हम नहीं कह सकते? क्या ये जो लोग हैं, क्या अल्लाह का ये फरमान उनके लिए नहीं है? अल्लाह तो जानता था ना, और अल्लाह को तो मालूम था ना कि 61 हिजरी में क्या होने वाला है। अल्लाह के तो इल्म में था ना। अल्लाह खुद अपने नबी से कहलवाता है कि ऐ नबी, इनसे कहो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता हूं, किसी अजर का, किसी सिले का मुतालबा नहीं करता हूं, मगर मेरे घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना, मेरे घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आना। अल्लाह जानता था कि ये बज़ाहिर ईमान के दावेदार होंगे, बज़ाहिर जबान से खुद को मुसलमान कह रहे होंगे, बज़ाहिर दाढ़ियां भी होंगी, नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, कुरान की तिलावत भी होगी, और फिर इनके हक में बहुत बड़े बड़े लोग लंबी लंबी जबानें भी खोलेंगे, और वो सब ये कहेंगे कि ये तो जन्नती हैं, ये तो मुसलमान हैं, ये तो सहाबी रसूल की औलाद हैं। आइए थोड़ी सी इस पर भी बात कर लेते हैं, सहाबी रसूल की औलाद पर बात कर लेते हैं। हजरत नूह का बेटा कौन था? नबी की औलाद था ना। अल्लाह ने मना कर दिया कि नहीं, ये तेरे अहल में शामिल ही नहीं है। कुरान का फैसला है ना, सूरह हूद पढ़ के देख लें। ए नबी, ये तेरे अहल में शामिल ही नहीं है। साबिर नबी का बेटा था, रसूल का बेटा था, यहां तो साबिर रसूल का बेटा है। तुम लोगों को तकलीफ होती है, तुम लोगों के दिल में दर्द उठता है। साबिर रसूल की तौहीन हो गई, अमीर मुआविया की तौहीन हो गई। अरे भाई, नूह का बेटा भी तो कौन था? अल्लाह ने क्या कहा? ये तेरे अहल में शामिल ही नहीं है। तो यहां साबिर रसूल का बेटा क्या और ऊपर से उतर के आ गया क्या? और कुरान में क्यों बात शामिल की? वो इन्हीं के मुंह पर तमाचा मारने के लिए, इन्हीं के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए, कि कोई ये ना कहे कि साहबी रसूल का बेटा है लिहाजा जन्नती है, ताबी है। साहबी को देखने वाला ताबी होता है ना, और रसूल को देखने वाला कौन होता है? वो तो साहबी होता है। ठीक है ना? कह दो नूह का बेटा साहबी था, मान लो। कुरान कहता है तेरे अहल में शामिल ही नहीं है। तो बात क्या है? बात यह है कि इनके दिलों में मर्ज है, कीना है, बुग़्ज़ है। ठीक है, तो अब बात को मजीद आगे चलाते हैं। फिर आगे साथ ये इरशाद होता है, मैं यक्तरिफ हासनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, कि जो जैसा अच्छा अमल करेगा उसको वैसा अच्छा बदला मिलेगा। और इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, कि अल्लाह गफूर है, बख्शने वाला है और कदरदानी करने वाला है। साथ ही ये फरमा दिया कि अगर तुम अच्छा बर्ताव करोगे, अगर अच्छा बदला, अगर ये जो हुक्म दिया जा रहा है इस पर अमल करोगे तो फिर अच्छा बदला भी मिलेगा। लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर ना तुम्हारा हिस्सा होगा ना उसका हिस्सा होगा, कि उसका हिस्सा तो नहीं है, तुम्हारा भी नहीं होगा। कि तुम भी अगर आले रसूल के साथ बुग़्ज़ रखोगे, आले रसूल के साथ तुम्हारे दिल में कीना होगा, हसद होगा, नफरत होगी, तो फिर ना तुम्हारा हिस्सा होगा ना उसका हिस्सा होगा। और फिर बात वही है, हदीस है कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। आज जो हुसैन के साथ मोहब्बत करते हैं वो हुसैन वाले हैं, और जो यजीद के साथ मोहब्बत करते हैं वो यजीद वाले हैं। अब हम क्या चाहते हैं? हमें क़यामत के दिन किसके साथ उठाया जाए? आले नबी के साथ या यजीद के साथ? क्या ख्वाहिश है हमारी? आइए अब
इसी सिलसिले में चंद नुकात आपके सामने और पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात तो बहुत लंबी है, बहुत तफसील से और बहुत तवील गुफ्तगू इस पे की जा सकती है। बहुत आगे हमें जाना नहीं है, बहुत बात लंबी नहीं करनी है, क्योंकि ये जिस फोरम पे हम आपसे मुखातिब होते हैं इसकी थोड़ी टाइमिंग होती है, लिमिट होती है, उसका हमें थोड़ा लिहाज रखना होता है, तो बहुत लंबी बात नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है और सही हदीस है, तिरमिज़ी की भी हदीस है। आप फरमाते हैं, और ये हदीस 2 मकामात पर है, 2 सहाबा से भी मरवी है और 2 मकामात पर है। एक हजरतुल विदा के मौके पर है, जो कि हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, जो कि बुखारी और मुस्लिम में है, और एक हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है, जो कि तिरमिज़ी में है। और ये इरशाद जो है वो खम के मकाम पर का है कि जब वो जो मक्का और मदीना के दरमियान एक पानी की एक जगह है खम के नाम पर जो है, उस वहां पर जो है वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है और वो तिरमिज़ी में है, उसको हसन सही कहा गया है। और जो सही मुस्लिम और सही बुखारी में है वो तो खैर मुत्तफ़क़ अलैह है। और वो हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आप फरमाते हैं कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। ये हज्जतुल विदा का खिताब है, खुतबे के अंदर मौजूद है। मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और अपने अहले बैत, और ये दोनों इकट्ठे रहेंगे यहां तक कि इनको हौज़े कौसर पर मेरे पास पेश किया जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और अपने इतरत अपने अहले बैत, और ये दोनों यकजा रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे यहां तक कि इनको हौज़े कौसर पर पेश किया जाएगा मेरे सामने, इन दोनों को। अब कोई ये कहे, एक बात हो सकती है ना, वो जी उस वक्त के अहले बैत तो अच्छे थे, ठीक थे, बाद में मसाइल पैदा हो गए, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि हमारा जो है ना तरीका, हमारा जो वतीरा है ना वो बड़ा अजीब सा है। वो जी वो वहां तक तो बात ठीक थी, वो बाद में मामलात और हो गए। तो आपने बात को अधूरा नहीं किया, बात को अधूरा नहीं किया बल्कि मुकम्मल किया और फरमाया कि ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, यकजा रहेंगे। क्या क्या? कुरान मजीद और मेरे अहले बैत। अब अगर तुम ये कहते हो कि इमाम हुसैन ने इक्तदार की जंग लड़ी थी, इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को गलत जो है वो रास्ते पर लेके चले थे, यानी अगर देखिए ना, अगर छोटे छोटे बच्चे शहीद होते हैं, उन पर जुल्म होता है, और ये मतलब इस्लाम के लिए नहीं था, इक्तदार की ख्वाहिश के लिए था, तो फिर तो अब मैं क्या अल्फाज कहूँ, इमाम हुसैन का अमल साफ जाहिर है कि फिर तो वो मुनासिब नहीं था। अपनी जात की हद तक तो जो बात अलहदा है, लेकिन अगर अपने अहले बैत के साथ ऐसा कुछ करते हैं और अपनी ख्वाहिश के लिए उनको कुर्बान करते हैं, तो फिर आपके इस अमल को क्या कहा जाएगा? ठीक है, लेकिन आपने क्या फरमाया कि ये इकट्ठे रहेंगे, कुरान के साथ रहेंगे। फिर कुरान पर भी इख्तिलाफ कर लो, क्योंकि तो कुरान के साथ हैं। और हौज़े कौसर तक इकट्ठे रहेंगे, हौज़े कौसर तक। हौज़े कौसर कब होगी? आप हौज़े कौसर पे कब होंगे? कयामत के दिन, यानी ता कयामत अल्लाह का कुरान और आपके अहले बैत यकजा रहेंगे। ये मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है, हदीस के अल्फाज हैं। अब इसके बाद भी कोई गुंजाइश रहती है, इसके बाद भी कोई शक्को शुबा बाकी रह जाता है। और हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका मैंने अभी आपको हवाला दिया, आपसे जब ये हदीस कुछ ताबीन ने सुनी, जब उन्होंने आपसे ये कहा, इसमें कुछ लोग थे, यजीद बिन नहयान और हुसैन नामी एक ताबी हैं, हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, इन्होंने सवाल किया कि अहले बैत कौन है? आपने सवाल किया कि क्या आपकी अज़वाज? आपने फरमाया कि हाँ, आपकी तमाम अज़वाज अहले बैत में शामिल हैं। ये भी याद रख लीजिए, जो एक तबका जो है ना, वो उनके नजदीक अहले बैत में सिर्फ 4 लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने फरमाया कि हाँ, आपकी तमाम अज़वाज अहले बैत में शामिल हैं। और फिर आपने फरमाया आले अली, आले जाफिर, आले अकील और आले अब्बास,
ये सब अहले बैत में शामिल हैं। ये वो सब जिन पर सदका लेना दुरुस्त नहीं, जिनके लिए ज़कात लेना दुरुस्त नहीं, और ये नहीं ले सकते, और ये सब आले अली, आले अकील, आले अब्बास और आले जाफर, ये चारों, इन सब की, न सिर्फ ये खुद बल्कि इनकी आल, इनकी औलादें सब अहले बैत में शामिल हैं, और आपकी तमाम अज़वाज भी अहले बैत में शामिल हैं। अब अगर कोई शक व शुबा कोई चीज रह जाती है तो फिर देख लीजिए, अब वो तबका जिनके नजदीक अहले बैत में सिर्फ यानी पांच तन पाक में एक तो आप खुद हो गए ना, तो उनके नजदीक बाकी सिर्फ 4 लोग हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सब अहले बैत में शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 2 एक, क्योंकि तबका वो और भी है, अगरचे मैं ज्यादा किसी इख्तलाफ की तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन वो चीजें जो कि साबित हैं, अब ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये भी मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के 2 अक़वाल, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उसके बाद इंशाअल्लाह हम बात को मुकम्मल कर लेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अली करमल्लाहु वजहू से इरशाद फरमाते हैं कि अली, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं, ये सही मुस्लिम सही बुखारी दोनों में मौजूद है, ए अली, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत अपने घर वालों से ज्यादा महबूब हैं। लोग एतराज करते हैं, लोग बातें करते हैं, वो जी इंसाफ नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सही मुस्लिम सही हदीस में मौजूद, सही बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते हैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत अपने अहले बैत से, अपने घर वालों से ज्यादा महबूब हैं। अब अगर जो आजकल जो लंबी लंबी जबानें खोलते हैं, जो बातें करते हैं, मैं अब उस तरफ जाना नहीं चाहता, मजीद उसको मैं छेड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि बात चलेगी तो फिर दूर तक चली जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो आप फरमाते हैं मुझे ज्यादा महबूब हैं। अच्छा, इसी तरह से सीरत इब्ने हशाम एक किताब है, सीरत की, आप की सीरत की किताब है, उसमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि अब्बास, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान अपने खानदान से ज्यादा पसंदीदा है, और मुझे आपका ईमान लाना, अल्फाज देखिए, मुझे आपका ईमान लाना अपने वालिद के ईमान लाने से ज्यादा पसंदीदा है, इसलिए कि मेरे वालिद के ईमान लाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी नहीं हुई थी जितने आपके ईमान लाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हुई थी। तो ये तो उन सहाबा का जिस पर आज जबानें खोली जाती हैं, तनकीद की जाती है, क्योंकि देखिए ये तल्ख हकीकत है। एक तबका है वो है जो अमीर मुआविया, बड़ा तबका वो भी है जो खुलफाए सलासा पर तनकीद करता है, उन पर नुक्ताचीनी करता है, ठीक है। तो ये 2 अक़वाल पेश करने का मतलब सिर्फ ये है कि जितनी बातें हैं ये सब बेहकीकत और बेबुनियाद हैं, सब बेहकीकत और बेबुनियाद हैं, और कुरान हकीम की इस आयत की रूह से जो आज आपके सामने पेश की है, जो अकीदा आपके सामने पेश किया है, जो सूरत हाल आपके सामने पेश की है, हकीकत ये है कि हम सब का ईमान, हम सब का अकीदा कुरान हकीम की इस आयत के मुताबिक होना चाहिए। हमारे लिए तमाम खुलाफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, अली करमल्लाहु वजह, उस्मान, चारों खुलाफा राशिदीन और आपके तमाम अहले बैत हमारे लिए यकसा हैं, हमारे लिए सब महबूब हैं, सबसे मोहब्बत है, सबसे अकीदत है, सबसे मोहब्बत है, सबसे प्यार है, सबसे उन्स है, और ये सब हमारे लिए मशाले राह हैं, हमारे लिए सब काबिल तकलीद हैं। इन सब के पीछे हमें चलना है, इन सब की मोहब्बत को हमें दिल में बसाना है, इन सब के साथ हमें चलना है, ठीक है। ये कुरान हकीम की एक मुख्तसर सी आयत, उसके बाद जो है एक हदीस और 2 खुलफा के जो अकवाल हैं, ये मैंने मोटी मोटी बातें आपके सामने पेश की हैं। मैंने कोई करबला के वाकयात नहीं पेश किए, लंबी चौड़ी कहानी नहीं आपके सामने पेश की, मोटी मोटी चंद बातें आपके सामने पेश की हैं। समझने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है, इसको जितना बढ़ाया जाए, जितना इसको खींचा जाए, जितनी इसमें मजीद वसअत पैदा की जा सकती है, लेकिन मेरा मकसद ये था
کہ ہم مختصر وقت میں، محدود وقت میں چند اہم نکات آپ لوگوں کے سامنے لا سکیں تاکہ ہمیں اس معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ مختلف لوگ اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنی طرح سے اس چیز کو، اس پورے واقعے کو، پورے معاملات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اہل بیت کا منکر ہے، کوئی خلفائے ثلاثہ کا منکر ہے، کوئی اور کسی اور طرح سے کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی سمجھی کہ قرآن حکیم کی روشنی میں اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں، خود معاملات کو سمجھ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اور اس وقت یہ جو اختلافات اور نفرتوں کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، جو مزید آگے بہت خطرناک شکل اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔